اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون صدق اللہ العظیم۔ آج کی تراویح میں سورہ روم سے خلاصہ تفسیر پیش کیا جائے گا۔ سورہ روم یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے اندر 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کے متعلق ناقابل انکار دلائل اور ثبوت فراہم کیے گئے ہیں۔ چنانچہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت دو مشہور اور سپر پاور طاقتیں تھیں۔ ایک ایران جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے اور وہاں کی حکومت کو کسرا کہا جاتا تھا، اور اس کی حکومت مشرق میں تھی۔ اسی طرح دوسری جو حکومت تھی روم، اس کی حکومت شمال اور مغرب میں تھی۔ چنانچہ اس کی حکومت ملک شام اور اسی طرح جو ہے یورپ کا ایک بڑا حصہ اس کے سلطنت میں آتا تھا۔ یہ لوگ عیسائی تھے اور ان کا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا اور آپ کی کتاب پر ایمان تھا۔ ان دونوں میں ہمیشہ لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ وہ دور ایسا تھا کہ جب ایران روم پر مکمل طور پر فتح حاصل کرتے ہوئے بہت ہی آگے بڑھ رہا تھا، اور اتنا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب جو ہے روم مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اور روم کے بادشاہ ہرقل، روم کے ہر بادشاہ کو ہرقل کہا جاتا ہے، ہرقل کو کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے پر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب مجبور ہونا پڑے گا۔ اس وقت قرآن کریم کی یہ چند آیتیں جو شروع کی ہیں وہ اتری کہ رومی مغلوب ہو گئے، قریب کی سرزمین میں چند سالوں کے اندر یہ لوگ غالب آ جائیں گے، اور اس وقت جو ہے مسلمان بھی، ایمان والے بھی اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب بھی ایران کو فتح حاصل ہوتی تو مکے کے مشرک نہ صرف وہ خوش ہوتے تھے بلکہ مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے چڑھاتے تھے کہ دیکھو ایران کے جو لوگ ہیں، ایران کی جو حکومت ہے وہ ہمارے جیسی ہے، مطلب جس طرح نہ ہم کسی کتاب پر اور پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ جس طرح ان کو مسلسل فتح حاصل ہو رہی ہے اسی طرح ہم بھی تمہارے اوپر فتح حاصل کر رہے ہیں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ جب مسلمانوں کو بہت زیادہ مکے کے اندر ستایا جا رہا تھا اور بہت زیادہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایسے نازک حالات میں یہ آیتیں جب اترتی ہیں تو کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مکمل طور پر جب ایران روم پر غالب آ رہا ہے اور وہاں کے بادشاہ کو دوسری جگہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پناہ لینا پڑے گا، تو کس طرح روم اب ایران پر غالب آ سکتا ہے؟ یہ تو قیاس سے بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان چند آیتوں کے اندر کہ دو باتیں پیش آئیں گی، دو پیشین گوئیاں قرآن کریم کر رہا ہے، اور ایسے وقت میں کر رہا ہے جس وقت میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔
पहली पेशेन गोई ये है कि आज ईरान रूम पर गालिब आ रहा है, लेकिन चंद ही सालों के अंदर ये मगलूब हो जाएगा और रूम ईरान पर गालिब आ जाएगा। एक दूसरी पेशेन गोई ये है कि मुसलमान भी खुश होंगे अल्लाह की मदद से, यानी मुसलमानों को भी फतह हासिल होगी और वो भी खुश होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चंद ही साल गुजरे थे। एक मशहूर मुअर्रिख एडवर्ड गबन ये बात लिखता है कि गुज़िश्ता 12 सालों से ये बात दिख कर आ रही थी कि मुसलसल ईरान रोम पर फतह हासिल करते हुए आगे बढ़ रहा था, और उसी वक्त कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई। चुनांचे कुरान करीम की पेशेन गोई के बाद भी रोमियों को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। तो उस वक्त अरब के सरदार जिसका नाम उबई बिन खल्फ था, उसने न सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाया बल्कि उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो से इस बात की शर्त लगाई कि अगर 3 सालों के अंदर रूमी ईरान पर फतह हासिल कर लेते हैं तो मैं तुम्हें 10 ऊँट दूंगा, लेकिन अगर इसका बरअक्स होता है तो तुम्हें देना पड़ेगा। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और इस शर्त को बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते हैं कि पेशेन गोई में बिज़्र का लफ्ज़ आया है और बिज़्र का मतलब होता है 3 से 9। चुनाचे तुम मुझसे शर्त लगाओ कि 3 से 9 सालों के अंदर अगर रूमी फतह हासिल कर लेते हैं तो तुम्हें देना होगा, नहीं तो मैं दूंगा, और 10 ऊँट नहीं बल्कि 100 ऊँटों की शर्त लगा लो। चुनाचे उबई इब्ने खल्फ ने जब देखा कि ऐसा कोई माहौल नहीं बन रहा है कि जिसकी वजह से रूमी ईरान पर गालिब आ जाएं, उसने इस शर्त को कबूल कर लिया। चुनाचे 7 ही साल के अंदर और ईरानी मुकम्मल तौर पर मगलूब हो गए। आयन उसी वक्त जबकि रूमी ईरानियों पर गालिब आ गए थे और ईरानियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ग़ज़वा बद्र वाक़े हुई थी और मुसलमान काफिरों को शिकस्त दे चुके थे। तो गोया कि कुरान करीम की पेशेन गोई हर्फ बहर्फ सादिक आ गई, और उस वक्त जब शर्त पूरी करने की बात आई तो उबई इब्ने खल्फ मर चुका था। चुनाचे उसके बेटे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो को 100 ऊँट दिया, लेकिन उस वक्त जुए की हुर्मत उतर चुकी थी, और चूंकि 2 तरफा जो शर्त होती है वो जुए की कबील से होती है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 100 ऊँट ले लो, लेकिन सदका कर दो, तुम खुद इस्तेमाल मत करो। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने इसी तरह किया। अब 2 तरफा शर्त ये हराम है। चुनांचे अगर कोई 2 टीमें कोई मैच खेलती हैं, वह कैसा भी मैच हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, और दोनों तरफ से दोनों टीमें शर्त लगाती हैं तो ये शर्त हराम होगी। हाँ, इस तरह जायज़ हो सकती है कि पहले एक टीम ये कहे कि मैं इतना रुपया रखता हूँ या ये ट्रॉफी रखता हूँ,
अगर तुम जीत जाना तो तुम ले लेना, अगर हम जीतेंगे तो तुमसे कुछ भी नहीं लेंगे, ये जायज हो जाएगा। इसी तरह दूसरी सामने वाली टीम इस तरह कहे कि अगर मैं ये रुपए पैसे या सामान रख रहा हूं या ट्रॉफी रख रहा हूं, अगर तुम जीतना तो तुम ले लेना, अगर हम जीतेंगे तो हम आपसे नहीं लेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक ही टीम दोनों बार जीत जाए और दूसरी टीम दोनों बार हार जाए, इस तरह हो सकता है। लेकिन दो तरफा शर्त लगाना ये शरीयत की निगाह में सही नहीं है। इसी तरह इस सूरत के अंदर उन लोगों को तंबीह की गई है, कुफ्फार मक्का को ये याद दिलाया गया है कि तुमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मालो दौलत, जायदाद, औलाद, तमाम चीज़ों से नवाजा था। लेकिन जब उनके अंदर नाफरमानियां पैदा हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम को हलाको बर्बाद कर दिया। अफलम यसीरू फिल अर्ज़, तो क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं कि ये लोग देखें कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। कानू अशद्द मिनहुम कुव्वा, वो लोग इनसे ज्यादा ताकतवर थे। और वामरुहा, और उन्होंने जमीन को आबाद किया, जितना इन्होंने आबाद किया उससे ज्यादा उन्होंने आबाद किया। उन्होंने जमीन को जोता, जमीन पर काश्त की, लेकिन क्योंकि उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम को हलाको बर्बाद कर दिया। तो कुफ्फारे मक्का से ये कहा जा रहा है कि आप इन लोगों की हिस्ट्री, इन लोगों की तारीख पर गौर करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये लोग कैसे थे। तो इस सूरत में ये बात आई है कि इंसान को जो भी परेशानी पहुंचती है ये उसी की बदआमाली का समरा है। यानी जितने भी काट सालियां, ताउन, बीमारियां और परेशानियां इंसान के ऊपर आती हैं तो वो उसी के बदआमाली और उसी के करतूत का समरा होता है। चुनांचे इन सब परेशानियों को अल्लाह तबारक व तआला देने के बाद ये चाहते हैं कि इंसान सुधर जाए और माफी मांग लें और सही तरीके पर रास्ते पर आ जाएं, हिदायत हासिल कर लें। लेकिन इंसान अगर सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं सुधरता है तो ये परेशानियां बाकी रहती हैं। ये असबाब होते हैं और असबाब का जो बनाने वाला होता है वो अल्लाह होता है। मुसब्बिबुल असबाब कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। और वो सबब क्या है? वो इंसानों के बुरे आमाल हैं। अगली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह लुकमान है। सूरह लुकमान के ताल्लुक से ये बात आती है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान, इस ताल्लुक से नाकाबिले इनकार सबूत और दलाइल फराहम किए गए हैं। चुनांचे इस सूरत के अंदर शुरू में सबसे पहले ये बात बतलाई गई है कि कुरान करीम जब लोगों के सामने पढ़ा जाता था, क्योंकि अरब के लोग उसे समझते थे और फौरन जो है उस कुरान की तरफ ये लोग लपकते थे और अमल करते थे और मुसलमान हो जाया करते थे, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था। चुनांचे वो लोग क्या करते थे? वो लोग दूसरे मुल्कों से जाकर किस्से कहानियों की किताबें ला करके और नाचने और गाने वाली जो है बाजियों को, लौंडियों को ला करके जो है उनके सामने रखते थे और ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पुराने लोगों के आद, समूद वगैरह के किस्से तुम्हें सुनाते हैं, मैं तुम्हें ताजा तरीन किस्से सुनाता हूं और ताजा तरीन गाने में तुम्हें सुनाता हूं। नजर इब्ने हारिस एक बहुत बड़ा ताजिर था, उसने ये काम किया था। तो इस सूरत का जो नाम सूरह लुकमान है, इस सूरत में उनका खुसूसन तस्करा किया है। और ये लुकमान कौन थे? ये कोई नबी नहीं थे। हाँ, ये एक ऐसे अक्लमंद और ज़हीन और दाना इंसान थे कि लोग इनकी दानाई और अक्लमंदी की बातें अपनी किताबों में किया करते थे और साथ ही साथ शुआरा अपने कलाम में इनके ताल्लुक से बयान किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम लुकमान को मानते हो?
देखो किस तरह उन्होंने अपने बेटे को इस बात से रोका है कि मेरे बेटे तुम ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और तुम अपने बेटों को शिर्क से रोकने के बजाय अगर वो मुसलमान हो जाते हैं तो कहते हो कि तुम दोबारा शिर्क में लौटाओ। अगर तुम हकीकत में लुकमान को मानते हो तो तुम उनकी नसीहतों पर अमल क्यों नहीं करते हो। इसी तरह लुकमान की चंद नसीहतें इसमें बयान की गई हैं कि ऐ मेरे बेटे तुम जमीन पर अकड़ते हुए मत चलो, और ऐ मेरे बेटे तुमको किसी की बात अगर नागवार लगे तो तुम गाल मत फुलाओ, तकब्बुर मत करो। और ऐ मेरे बेटे जब किसी से बात करना हो तो तुम जो है चिल्ला चिल्ला करके बात मत करो। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, याद रखो आवाजों में सबसे बुरी आवाज जो है वो गधे की आवाज है। इसी तरह इस सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 चीजों के ताल्लुक से ये इरशाद फरमाया है कि 5 चीजों का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, क़यामत कब आएगी उसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। वयुनज़्ज़िलुल गैथ, बारिश कब होगी इसका इल्म अल्लाह को है। वयअलमु मा फिल अरहाम, और माओ के पेटों में जो औलाद है वो क्या है। अब आप ये कहेंगे कि आजकल अल्ट्रासाउंड के जरिए और ऐसी मशीनों के जरिए ये पता लगाया जा चुका है, लेकिन ये है कुरान। अगर हम इसे कहेंगे कि ये बात तो साबित हो चुकी है, तो यहां पर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि यहां पर पैदा होने वाली औलाद की खुसूसियत और उसकी सिफात के ताल्लुक से बयान किया जा रहा है कि पैदा होने के बाद वो औलाद, वो लड़का या लड़की जालिम होगा या आदिल होगा, बुरा होगा या अच्छा होगा, इस ताल्लुक से, और इसका पता कोई नहीं लगा सकता है। और इसी तरह कोई शख्स कल क्या कमाएगा ये किसी को नहीं मालूम। लोग प्लान बना करके सो जाते हैं, सुबह के अंदर वो अपने बिस्तर पर पड़े हुए मिलते हैं, उनका प्लान फेल हो जाता है। और आखिरी चीज ये है कि कौन शख्स किस सरजमीन में मरेगा ये किसी को नहीं मालूम है। यानी अगर किसी की मौत अल्लाह तबारक व तआला ने किसी दूसरे मुल्क में रखी है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोई ना कोई जरूरत उस मुल्क में पैदा कर देगा, और वहां पर उस शख्स को जाना होगा, और वहां जाने के बाद वो शख्स वहीं पर मर जाएगा। यहां तक कि अगर एक भिखारी की मौत जिसके पास कुछ नहीं है अगर अमेरिका में लिखी होगी तो वो वहां जाएगा, उसको अरेस्ट करके ले जाएंगे, कैसे भी लेकर जाएंगे, तो वो वहां जाकर के मरेगा। इसी पर जो है सूरह लुकमान का इख्तिताम होता है। और इसके बाद जो सूरत है वो अलिफ लाम मीम सजदा है। इस सूरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है तौहीद, रिसालत और आखिरत के ताल्लुक से बयान फरमाया है। और आखिर में इस सूरत के अंदर ये फरमाया है कि ये लोग कहा करते हैं कि आप हमको समझाते हो, क़यामत से डराते हो, और क़यामत कब आएगी, वयक़ुलूना मता हादल फत्ह, वो वाक़या कब आने वाला है। आप कह दीजिए कि जिस वक्त वो चीज सामने आ जाएगी तो उस वक्त तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। और इसी पर सूरह अलिफ लाम मीम सजदे का इख्तिताम होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तरीके पर कुरान करीम पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने वाला बनाए। कुरान करीम के जरिए हमारे शहर, मुल्क और आलम इस्लाम के हालात तब्दील फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।